Today we are going to discuss verbs and types, and this video is presented by A. Academy Foundation. So, what is verb? Verb is a fundamental part of speech that expresses an action, occurrence, or state of being within a sentence. Verb convey what the subject of a sentence is doing or what is being done to a subject. They are essential for constructing meaningful sentences and conveying information about action, events और states. Verb वर्ब आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि आपको बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और या वो जो है आपको सेंटेंस में आपकी मीनिंग जनरेट करता है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। तो अब हम एक टाइप्स ऑफ वर्ब की तरफ चलते हैं। सो द फर्स्ट टाइप action verb. These verbs express physical or mental actions such as run, jump, think, eat or study. Action verb हम बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक्शन वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। प्लेइंग इज एन एक्शन वर्ब। ही इज राइटिंग लेटर, वो लिख रहा है। राइटिंग इज एन एक्शन वर्ब. Before moving towards linking verb, which is another type of verb, we must know about object and object complement. Object is a part of sentence that typically follows the verb and receives the action of the verb or shows the result of the action. So, next is object complement. Object complement, on the other hand, is a verb or phrase that follows and modifies or completes the meaning of the direct object. It provides additional information about the direct object, often describing its state or characteristics. So, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर आपका जो सब्जेक्ट है ना, जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई एक्शन सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया हो। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इसकी हर सेंटेंस में जरूरत नहीं होती। सो how we can differentiate between object and object complement? Some tricks. So let's consider two examples. He gave him a gift and she considered him a friend. So in the first sentence, put equal to sign between him and a gift. Him is equal to a gift, which is wrong. Here the equal to sign does not work, so it is an object. In this second sentence, put equal to sign between him and a friend. Him equal to friend, which is true. Friend is an him is equal to friend, where in this sentence equal to sign is work. So it is object complement. So हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ जिस सेंटेंस में हमारे पास इक्वल टू का साइन वर्क कर रहा हो, ठीक है, जैसे हिम इज इक्वल टू अ फ्रेंड, ही कंसीडर हिम अ फ्रेंड, हिम इज इक्वल टू अ फ्रेंड वर्क कर रहा है, तो ये हमारे पास अ फ्रेंड जो है हमारे पास तो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हिम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और ही गेव हिम अ गिफ्ट, हिम इज इक्वल टू गिफ्ट, ये हमारे पास इक्वल टू का साइन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अ गिफ्ट हिम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो ये अ गिफ्ट इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। Moving towards the linking verb. Linking verb is an important type of verb. Linking verb connect the subject of a sentence with a subject complement which describe or renames the object. अच्छा, linking verb जो है हमारे पास आपके जो subject है उसको object complement के साथ कनेक्ट करता है। चाहे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ करेगा। यह आगे जाके आपको समझ आएगी। देयर आर सम इजी ट्रिक्स टू लर्न लिंकिंग वर्ब। देन number one is am are was verb. These verbs are used as helping verb as well as linking verb. ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी यूज होते हैं, लेकिन हमें इसमें मुश्किल रहती है कि हम इनको क्या कहें, हेल्पिंग वर्ब कहें या लिंकिंग वर्ब कहें सेंटेंस में जब हमसे पूछा जाता है। सो हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सो put equal to sign instead of is am or was verb. If the sentence meaning is correct, then is am or was verb is a linking verb, otherwise helping verb. अगर हम सेंटेंस में is am or was verb की जगह equal to का साइन पुट कर दें, तो अगर equal to का साइन वर्क कर रहा हो, सेंटेंस मीनिंग वही दे रहा हो और करेक्ट मीनिंग दे रहा हो, तो is am or was verb जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा था, हमने कहा लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो अब हम इधर वही देखेंगे। वी आर अ नेशन, ठीक है, तो v इज इक्वल टू अ नेशन। अगर ये इक्वल टू का साइन इधर वर्क कर रहा है तो हमें ये पता चल गया अ नेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया आर जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इक्वल टू का साइन वर्क कर रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए हमने पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को पढ़ा।
क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। इफ एक्ट एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, इसकी क्या ट्रिक्स है? इसकी ट्रिक हमारे पास ये है, इफ रिप्लेस दीज वर्ब्स विद इज एम आर इक्वल टू साइन देन सेंटेंस गिव्स सेम मीनिंग और बिफोर देन क्या कहते हैं एज बिफोर देन वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब। अगर तो हमारे पास जो है मेन वर्ब की लिंकिंग वर्ब की सेंटेंस में मेन वर्ब इसकी तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो हमारे पास हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो हम इसका फाइंड करेंगे कि हम उस मेन वर्ब की जगह इज एम आर और इक्वल टू का साइन पुट कर देंगे, कुछ भी हम लोग सब्जेक्ट के मुताबिक पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इज एम आर और इक्वल टू का साइन हम सब्जेक्ट के मुताबिक उस सेंटेंस में पुट कर देंगे। अगर तो सेंटेंस वही मीनिंग दे रहा हो जो मेन वर्ब के साथ दिया लिंकिंग वर्ब के साथ दे रहा था तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं जो वो वर्ब कहलाएगा क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और अगर वो मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो वर्ब हमारे पास कहलाएगा मेन वर्ब। तो अब लिंकिंग वर्ब्स हैं जो कि हमारे पास कॉमनली यूज होते हैं, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला से हम इसको याद करेंगे, पीटी सागर सब डब्ल्यू। तो P for proof, T for turn, S for seen, A for appear, G for grow and R for remain, and S for stay, B for because and W for went। सम अदर जो है बहुत से और भी लिंकिंग वर्ब हैं, लेकिन हम लोग जो कॉमनली जिनको डिस्कस करते हैं, जिनकी एग्जांपल्स में कॉमनली यूज होते हैं वो यही हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम फार्मूले से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। सो हमने अभी एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब के बारे में पढ़ा। तो इसकी वर्ब की कुछ और भी टाइप्स हैं, जैसे कि एक्शन वर्ब की आगे हमारे पास टाइप्स आती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और फिर ट्रांजिटिव वर्ब की आगे टाइप्स आती हैं डायटोमिक, मोनो क्या कहते हैं डायट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो हमने पढ़ा वो अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिमाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कोई आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे, तो आप मुझे कहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल सकें टाइमली और आपकी पढ़ाई में कोई क्या कहते हैं हर्ज ना हो। और अगर आपको कोई और ग्रामर के हवाले से कोई और बात किसी और हवाले से वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।